मुसलमानों की देशभक्ति पे आप सवाल उठाते हैं। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्लाह को। खास न्यूज आशा। সংসদৰ মজিয়াত আম আদমি পাৰ্টিয়ে এগৰাকী সাংসদে বিজেপিক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু এই আক্ৰমণৰ ভিডিঅ' ব্যাপক ভাইৰেল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিজেপিক এনেকুৱাকৈ আক্ৰমণ কৰিছে যে বিজেপিৰ যিমান সংখ্যক সাংসদ আছিলে কাৰোৰে মুখেদি এটা মাত পৰ্যন্ত ওলাবলৈ সাহস গোটাব পৰা নাই। বিজেপিৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য তেওঁলোক ৰাজপাট দখল কৰিব লাগিব আৰু এই ৰাজপাট দখল কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকৰ মূল হাতিয়াৰ হৈছে হিন্দু আৰু মুছলমান অৰ্থাৎ ধৰ্মক লৈ ৰাজনীতি। হিন্দু মুছলমানৰ মাজত যিমানে প্ৰভেদ সৃষ্টি কৰিব, যিমানে তেওঁলোকে প্ৰভেদ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব, যিমানে সংঘাত সৃষ্টি কৰিব পাৰিব, সিমানেই তেওঁলোকৰ ৰাজপাটত থকাটো উজু হ'ব। এয়াই হৈছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য। অৰ্থাৎ মুছলমানক হিন্দু আৰু হিন্দুক মুছলমানৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত সৃষ্টি কৰাত অহৰহভাৱে তেওঁলোকে অৰিহণা যোগাটোই স্বাভাৱিক। বিজেপি দলৰ নেতা কৰ্মী সকলোৰে এটাই কাম যে হিন্দু আৰু মুছলমান, যিমান বেছি মুছলমানক আক্ৰমণ কৰা যাব, যিমান বেছি মুছলমানক দোষাৰোপ কৰা যাব, যিমান বেছি মুছলমানৰ ওপৰত ঘৃণাৰ ভাৱ, বিদ্বেষৰ ভাৱ সিঁচি দিয়া যাব, সৃষ্টি কৰা যাব, সিমানেই অধিক সংখ্যক হিন্দুৰ ভোট বিজেপিয়ে দখল কৰিব, লাভ কৰিব। এয়াই হৈছে তেওঁলোকৰ মূল থিয়ৰী আৰু যাৰ কাৰণে বিজেপি বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাসকল, আনকি বিজেপি চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী, আমলা, বিষয়া সকলোৱে কিন্তু মুছলমানক আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় বা মুছলমানক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কটু মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ যে এইবোৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, অৰ্থাৎ মুছলমানক আক্ৰমণ কৰাই যে বিজেপিৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, সেই কথা দৌৰাবলৈ গৈ আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদগৰাকীয়ে বিজেপিক আক্ৰমণ কৰিলে। কেৱল সেয়াই নহয়, মুছলমানৰ ইতিহাস টানি আনি বিজেপিৰ মুখলৈ দলিয়াই দিলে, বিজেপি কৰ্মকৰ্তাৰ মুখলৈ দলিয়াই দিলে, বিজেপি নেতা মন্ত্ৰীসকলৰ মুখত দলিয়াই দিলে আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদগৰাকীয়ে। কাৰণ তেওঁ মুছলমানৰ ঐতিহাসিকভাৱে তেওঁলোকে কি কৰিছে, কি কৰা নাই, আশফাকুল্লাহ খান বা ভগত সিং তেওঁলোকে কি কৰিছে, স্বাধীনতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছে, এই সকলোবোৰ তথ্য লৈ আনি বিজেপিৰ বিষয়ববীয়া তথা সাংসদসকলৰ মুখত এটা ৰামচৰ সদাই ব্যাপক ৰূপত আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদগৰাকীয়ে বিজেপিক। আৰু সেই ভিডিঅ'টো চাই লওক। मुसलमानों की देशभक्ति पे आप सवाल उठाते हैं। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्लाह को। जब फैजाबाद की जेल में उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, उनसे पूछा गया आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन पे। यह है मुसलमानों का इतिहास पढ़ लेना। लेकिन आपको तो दाढ़ी से आपत्ति हो जाती है, टोपी से आपत्ति हो जाती है। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखा कर इन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते। बहादुर शाह जफर के इतिहास को पढ़ लेना। उनके बेटों का सर कटवा के रंगून की जेल में उनके सामने रखा गया। मानव अंग्रेज के पुलिस अफसर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, तो उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज अफसर को जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी, देख हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के मुसलमानों के इतिहास को पढ़िए, उनके प्रति आपके मन में सम्मान पैदा होगा। मुसलमानों की देशभक्ति पे आप सवाल उठाते हैं और कुछ लोग ऐसी टिप्पणी भी करते हैं जो मेरी समझ में नहीं आता। मैं अन्ना जी के आंदोलन के मंच का संचालन कर रहा था मान्यवर। मेवात से एक मुस्लिम लड़की उस मंच के संचालन के दौरान कही कि उसने कहा कि मैं समर्थन देने आई हूं, भाषण देना चाहती हूं। भाषण जब उसने समाप्त किया उस मुस्लिम लड़की ने, तो उसने कहा भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं उस विचारधारा से सहमत नहीं हूं। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि वो वंदे मातरम कहने से खत्म हो जाए। इस तरह की सोच के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं जिस सुल्तानपुर के छोटे से शहर में काम करता था, वहां मेरे साथ शमशाद भाई काम करते थे, बहुत आपसे ज्यादा तेज
भारत माता की जय वो लगा सकते हैं, वंदे मातरम लगा सकते हैं। आप आज इस नए भारत में कर क्या रहे हैं? झारखंड में क्या हुआ मान्यवर? चोरी के आरोप में एक आदमी को पीट पीट के मार दिया गया इसलिए कि वो मुसलमान था, एक वर्ग विशेष से था। क्या इसकी चिंता इस सदन को नहीं होनी चाहिए? क्या धर्म के नाम पे इस देश के अंदर बंटवारे चलते रहेंगे? ये विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान से रहने का हक है। लेकिन आपको तो दाढ़ी से आपत्ति हो जाती है, टोपी से आपत्ति हो जाती है। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखाकर जिन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्लाह को। जब फैजाबाद की जेल में उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, उनसे पूछा गया आपकी कोई अंतिम इच्छा? तो उन्होंने कहा कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन पे। यह है मुसलमानों का इतिहास, पढ़ लेना। बहादुर शाह जफर के इतिहास को पढ़ लेना। उनके बेटों का सर कटवा के रंगून की जेल में उनके सामने रखा गया। मान्यवर पुलिस के, अंग्रेज के पुलिस अफसर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, तो उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज अफसर को जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के मुसलमानों के इतिहास को पढ़िए तो उनके प्रति आपके मन में सम्मान पैदा होगा। और ये दाढ़ी और टोपी से और वंदे मातरम लगाने से और अल्लाह अकबर कहने से किसी का धर्म अगर कमजोर हो जाता है तो माफ कीजिएगा, आपका धर्म, आपके धर्म की व्याख्या बहुत कमजोर है। हिंदू धर्म जिसको हम मानते हैं, वो हिंदू धर्म तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और आप भारत माता की जय लगाते हैं, आप भी जोर से लगाते हैं भारत माता की जय, हम भी जोर से लगाते हैं भारत माता की जय। लेकिन मुझे बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों में भेद करती है? दलित बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, मुसलमान बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, पिछड़े बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, सिख बच्चे को अलग निगाह से देखेगी। अरे माँ तो वो माँ होती है जो अपने कमजोर बच्चों का ज्यादा ख्याल रखती है। भारत माता की जय लगाना है तो दिल से लगाइए। पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का साथ दीजिए, तब इस देश का विकास होगा। चमन में एक तलाते रंग बू से बात बनती है, चमन में एक तलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बदलिए, इस धारणा को बदलिए, इस विचार। সত্য আৰু নিৰপেক্ষ, আপোচবিহীন আৰু অপ্ৰতিৰোধ্য সত্যৰ সন্ধানত আমাৰ অবিৰত যাত্ৰা। আপোনালোকে চাই আছে ফাষ্ট নিউজ আসাম।